Hello guys, welcome back to the channel Bank Nifty only. So before we see the intraday levels and analysis for 5th July, let us do quickly the post market analysis. So as you can see, I had already stated this would be a no trade zone and between 34,700 to 800 and more of sideways possibilities between 34,800 to 35,000 if market opens gap up above 34,800. Okay, and you need to go on a selling side below 34,700. So this was the analysis posted to you on the trading view and explained on YouTube as well. So let's see how the day began. So market opened with a gap up, and as I had already explained that at this particular point that 34,800 was broken, so it would act as a resistance. So same when market reached at this particular point, we saw a downfall. Again it bounced back taking the support of 34,700 and it went on to the sideways. Okay, so most of it was in no trade zone. So even if risky traders, those who have taken trade, I'm not sure whether they went in a profit or loss, but just to make sure, even if you want to take trade in such scenarios, try to take the trade on selling side, that is when market reverses from the resistance from this particular point. Okay, so this was the post market analysis. Let us see the day view analysis for 5th of July. ओके, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि गाइज प्लीज कीप इट सिंपल, नो नीड ऑफ 100 indicators because this is my experience. I have tried so much of indicators but the indicators are lagging. ये इंडिकेटर सिग्नल मार्केट मूव होने के बाद दे देते हैं या फिर कुछ देते हैं, लेकिन वो इतने एक्यूरेट नहीं है जितना मुझे कैंडलस्टिक का एक्सपीरियंस हो रहा है, या फिर जो भी बड़े ट्रेडर्स आप देख रहे हो, जिन लोगों को आप फॉलो करते हो या फिर जो भी अच्छा खासा कमा रहे हैं वो लोग प्राइस एक्शन पे और कैंडलस्टिक पैटर्न को फॉलो करते हैं. तो मेरा आपको क्या कहना है या फिर क्या सजेशन है, इस पॉइंट पे आपको मैं दो चीजें दिखाना चाहता हूँ. तो मैंने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि दिस कैंडल इज सिमिलर टू शूटिंग स्टार बट नॉट एग्जैक्टली बिकॉज बॉडी इज बिग. ओके, एंड शूटिंग स्टार इंडिकेट्स अ डाउनफॉल, वो चीजें हमें ध्यान में रखनी थी. लेकिन ये कैंडल क्लोज टू एक सपोर्ट जोन था जो नीचे यहाँ पे हम देख सकते हैं 34,500 या फिर 6,700 का जो भी सपोर्ट है, फिर भी मार्केट एक लेवल नीचे आ गया इस लेवल तक. अब मुझे आपको क्या दिखाना है, ये कैंडल और ये स्पेसिफिक कैंडल. तो ये कैंडल को हम क्या बोलेंगे, जिन लोगों को मालूम नहीं है, वी कॉल इट एज अ स्पिनिंग टॉप. ओके, सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ स्पिनिंग टॉप एंड अ डोजी कैंडल. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक परफेक्ट डोजी कैंडल है जिसकी बॉडी बहुत छोटी होती है और विक्स बड़े रहते हैं, और यहाँ पे देखोगे तो बॉडी बड़ी है और विक्स छोटे हैं. सो दिस इज अ स्पिनिंग टॉप. सो व्हाट डज द स्पिनिंग टॉप इंडिकेट इन अ अप ट्रेंड? इफ अ स्पिनिंग टॉप इज फॉर्म, अगर अप ट्रेंड में एट द टॉप स्पिनिंग टॉप कैंडल बन जाती है तो वो इंडिकेट करती है मे बी अ रिवर्सल और अ डाउन ट्रेंड चालू हो सकता है. वही सेम चीज अ स्पिनिंग टॉप फॉर्मिंग एट द बॉटम ऑफ अ डाउन ट्रेंड. ओके, ये डाउन ट्रेंड है, हमें 4 दिन लगातार मार्केट नीचे आते हुए दिख रहा है. तो यहाँ पे अब स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो रही है, तो हमें एक बाउंस बैक मिल सकता है देखने को इस लेवल से, कंसिडरिंग ये सपोर्ट जोन भी है और एक रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है. तो दिस इज व्हाट simple candlestick patterns gives you an indication or a hint where the market is heading towards or what can be the next day. Okay, so इसलिए मैं कहता हूँ guys कि please get the basics done. No need, आपको किसी टिप्स कॉल प्रोवाइडर की जरूरत ही नहीं लगेंगी. थोड़ी दिक्कतें होगी इनिशियली, so trade with small quantity, learn things,
when you get good hands on, then go for big lot of trading. Okay, so this was the day view analysis. Let us see the intraday level analysis for 5th of July. So first we would see the support and resistance level. So strongest support is at 34,500, strongest resistance is at 35,000, and stronger resistance is at 35,500. So in between we can see a good support zone between 34,700 to 800, a strong resistance zone between 35,200 to 400. Okay, so these are the stronger resistance and support level zone. और एक चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने दो सर्कल्स मार्क किए हैं. मैंने एक पहले भी पोस्ट में आपको बताया था कि ये वाली पोस्ट में बैंक निफ्टी फर्स्ट ऑफ जुलाई वाली पोस्ट में या फिर एक्सपायरी पोस्ट में मैंने ये मार्क किया था कि आप यहाँ पे पीछे देखो एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है इस लेवल पे. तो सेम मार्केट इस लेवल पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है. ये मैंने 1 जुलाई को पोस्ट किया था. तो सेम वही चीजें हमें रिपीट होते देखने को मिल रही है कि मार्केट ने इस लेवल पे भी सपोर्ट लिया था, अभी भी सपोर्ट लिया है या फिर साइडवेज जोन में चला गया था. तो मैंने एक यहाँ पे नोट भी लिखा है कि क्यों हमें पीछे का डेटा देखना इम्पोर्टेंट है. एक तो बैक टेस्टिंग के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, और दूसरी चीज यानी हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड लेवल्स मिल जाते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आ सकता है, नीचे जा सकता है या फिर ऊपर जा सकता है. सो दिस वाज वन पॉइंट फ्रॉम द लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू. सो आई एम थिंकिंग दैट मार्केट वुड ओपन गैप अप टुमारो. तो गैप अप ओपनिंग होने के बाद मैंने 3 पॉसिबिलिटीज बताई है कि मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है. तो मार्केट, लेट्स टेक अ पॉजिटिव पाथ फर्स्ट. तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद इनिशियल लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो छोटा है 34,900 को ब्रेक करके 35,000 तक जा सकता है. ये बीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस लेवल, वी कैन सी मार्केट टू कम डाउन एंड देन ब्रेक दिस पर्टिकुलर लेवल. We can see a retracement and then upward movement. Same thing we can see over here. Just take a look at this point, guys. You would understand how the market is behaving or how market itself repeats its pattern. Okay. Second possibility है ये blue line. तो मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद सीधा 35,000 के लेवल्स पे जा सकता है, फिर वहां से नीचे आ सकता है. कंसिडरिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस जोन, मोर बियर पावर कैन बी सीन एंड इट कैन बाउंस बैक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जोन. दिस इज द सपोर्ट जोन एंड गो इनटू द साइडवेज. दिस इज द सेकंड पॉसिबिलिटी. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट एक ऊपर खुला एट दिस क्लोज टू दिस पर्टिकुलर लेवल 35,000, फिर वहां से शार्प सेलिंग हमें दिख सकता है. यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, तो इस लेवल से ऊपर जाएगा 34,900 के लेवल तक. ये लेवल हमें रेजिस्टेंस एक्ट करता हुआ दिखाई देगा, फिर नीचे, और शायद ये सपोर्ट जोन भी ब्रेक करके मार्केट नीचे जाएगा. सो दीज आर द 3 बेसिक पाथ्स वी कैन कंसिडर और टेक इनटू कंसिडरेशन. तो मैं हमेशा आपको बोलते रहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे पोस्ट मार्केट एनालिसिस करो. जाने उससे क्या फायदा होगा कि आपने अगर कुछ गलती किया होगा तो आपको वो एनालिसिस होगी, आप उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे नेक्स्ट डे. दूसरी चीज, सुबह ट्रेड होने से पहले 10-15 मिनट पहले प्री मार्केट एनालिसिस करो. प्री मार्केट एनालिसिस में क्या करना है कि अगर आप बाई या सेलिंग साइड ट्रेड लेना चाहते हो तो क्यों और क्या, क्यों आप लेना चाहते हो ये थोड़ा एनालिसिस करो. तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, जब भी आप ट्रेड लोगे या फिर लेने से पहले आपके दिमाग में हमेशा ये चीज़ें रहेगी कि कल मैंने क्या गलती की थी और कल मैंने कौन सा अच्छा ट्रेड लिया था, उसके ऊपर आज मैं अगर गलती किया होगा तो आज मैं वो रिपीट नहीं करूँगा, और अच्छा ट्रेड लिया होगा तो उसको मैं फॉलो करूँगा, राइट एंट्री लूँगा. सो दिस वॉज इट. आई होप you like my analysis. Please hit the like button so that it reaches to the maximum new traders या फिर जो भी नए बंदे आ रहे हैं या फिर experienced traders. They can also put their comments on my analysis and share with your friends जिन लोगों को अभी भी मालूम नहीं है. तो अगर
शायद ये मेरी लर्निंग एनालिसिस क्यों ना हो, उन लोगों को हेल्प मिले मेरे लर्निंग एनालिसिस से और गलत ट्रेड एंटर लेने से बचे, उनकी जो भी हार्ड अर्न मनी है वो बचे. Okay, and please subscribe so that you get the daily analysis for the bank nifty, and in the weekends I usually post some learning videos, that also you can get the notification. Okay, this was it regarding the bank nifty intraday level analysis for 5th of July. Thank you.